दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज शनिवार को पार्लियामेंट का आखिरी दिन था। वैसे पार्लियामेंट फ्राइडे को खत्म होने वाली थी, लेकिन सैटरडे को पार्लियामेंट का एक दिन बढ़ा दिया गया, जिसमें राम मंदिर के ऊपर डिस्कशन होना था। आज जब पार्लियामेंट चालू हुई, तो उस समय राम मंदिर के ऊपर काफी लोगों ने डिस्कशन किया। अब आज के बाद पार्लियामेंट अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे। 90 दिन के अंदर चुनाव तो हो जाने चाहिए, और उसके बाद नई लोकसभा बनेगी, मेंबर शपथ लेंगे, फिर नई गवर्नमेंट काम करना शुरू करेगी। तो जो आज की लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही है, उसको मैंने आज काफी ध्यान से सुना, और उन कार्यवाही में से 3 भाषण मुझे बहुत अच्छे लगे, जिनको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। और मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप लोग इन तीनों भाषणों को एंजॉय करेंगे। पहला भाषण में भूतपूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा का सुनाने वाला हूं, जिन्होंने अपना वक्तव्य भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के बारे में दिया। दूसरा भाषण मेरा जो सिलेक्शन है वो अमित शाह का है। अमित शाह जब भी पार्लियामेंट में बोलते हैं तो उनका भाषण बहुत ज्यादा सुना जाता है और वायरल होता है। आप लोगों को 2019 का अगस्त का वो भाषण उनका याद होगा, जब उन्होंने 370 को खत्म करने के लिए राज्यसभा में बिल पेश किया था, और वहां पर बोला था कि हम लोग कश्मीर के लिए जान दे देंगे। आज उन्होंने राम मंदिर के ऊपर जो भाषण दिया, वो बहुत हार्ट टचिंग था। उसको मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और तीसरा भाषण सुधांशु त्रिवेदी का था, जो बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हैं, और शायद इस सत्र के बाद वो रिटायर भी हो रहे हैं। उम्मीद है सुधांशु त्रिवेदी को बीजेपी फिर से वापस राज्यसभा में लेकर के आएगी। तो सुनते हैं कि इन तीनों महानुभावों ने क्या भाषण दिया था। पहला भाषण मैं आपके सामने जो पेश करने वाला हूं, वो देवगौड़ा साहब का है। पूरा भाषण नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ वो दिखाऊंगा आपको जो आपको I was a member of the Lok Sabha from 31. I was associated with Chaudhary Charan Singh for 4 years, sir. Myself, my family stayed in his house. He used to like me so much because I am a farmer. I was unable to speak Hindi. My wife unable to speak Hindi. But he made me to stay in his house. I have got so much of relationship. What has happened, I know. When he has taken oath as the Prime Minister, he was not able to come to this house.
when the agenda was fixed to meet the Lok Sabha, the previous day it was withdrawn. It was such a sorrowful day for me. I know Chaudhary Charan Singh is an honest to the core, honest to the core, how people try to. यहाँ पे देवगढ़ा साहब बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में एजेंडा फिक्स था कि चरण सिंह साहब को विश्वास मत प्राप्त करना है, उसके बावजूद कांग्रेस ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और उनको प्रधानमंत्री पद से बिना विश्वास मत पाए हुए, प्राप्त किए हुए इस्तीफा देना पड़ा। Demolish his name. I know everything. I don't want to go beyond that. The book is written, referred by my young gentleman. I know it. I have gone through that book. I have got that book. I can speak volumes. He was unable to come and sit in this house as Prime Minister. Late Sanjeev Reddy appointed him to conduct the election. I can speak volumes on so many issues. The progress of this country during the period of 10 years, what has been yesterday, madam, made sufficiently to meet the charges made by our other colleagues on black people. I will leave at that stage. Sir, Swaminathan, first time I met him in Philippines in 1974. I know what is Swaminathan. And I was 10 months. I also took his service for Green Revolution. Narsim Rao Bagge, I can speak volumes. I don't want to go beyond that. Only on Ram Temple, I will conclude in 4 or 5 minutes. Sir, just because I don't want to speak unnecessarily, I may not be able to speak eloquent English, that's why I made it. Sir, I said I and my wife both attended the consecration of the Lord Rama temple in Ayodhya. It was a great moment of personal joy and devotion for me, like it was to millions of Indians. Ayodhya Ram was existed in our hearts and mind is an image that our ancestors and elders have permanently created. Lord Rama is a symbol of righteousness. He is a symbol of love and graciousness. He is a man who followed Dharma and Raj Dharma. He was a very accommodative and reflective. It is these values ancient in Lord Rama that Mahatma Gandhi to him, drew Mahatma Gandhi to him. He was Gandhiji. It was Gandhiji who made Lord Rama a symbol of the great virtues of our nation. It is through Lord Rama and his divine blessings that he united this nation and laid the foundation for our harmonious future. It is through the moral strength that Lord Rama gave that he fought the British Empire. I seriously wish and pray that Lord Rama, that our ancestors
and elders gave us, and the new Rama temple in Ayodhya becomes a symbol of great humanity for our nation and the world. So lastly, I congratulate the Honorable Prime Minister who is actually, when Rama statue was installed, 10 days he has a vrat, taking juice and water. Fruit. He is such a person who actually performed the function. I was so happy, and I must be very frank not to praise the Prime Minister. He was so dedicated, sincere for performing that function with Pandits. I was there. Sir, about Chaudhry Charan Singh or Narsim Rao or Swaminathan, volumes we can speak. For such people, he has confirmed the Bharat Ratna. The house should enjoy. The country should welcome them. The country is going to welcome. Unnecessarily, let us not try to again. We should differ from each other on a major issue taken by the Prime Minister to confirm Rajratna, this Bharat Ratna for these great leaders, three leaders. You have given me some time. I am grateful to you. Thank you, sir. इसके बाद आज लोकसभा में अमित शाह ने जो भाषण दिया है 22-23 मिनट का, उसने आग लगा दी है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, आप खुद सुनिए अमित शाह ने कितना शानदार भाषण दिया है। जी, श्री बीबी पाटिल जी। अच्छा, सॉरी। स्पीकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे भारत विकास और आध्यात्मिक के जादुई पथ की ओर बढ़ रहा है, प्लीज माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आजादी के बाद जो कुछ राष्ट्र के जीवन में महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए हैं, उसमें से एक प्रस्ताव श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का, उसमें मुझे मेरे विचार रखने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए हृदय से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं देश की 140 करोड़ की जनता की ओर से भी आसन का, स्पीकर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो सदन है वो नियम से तो चलता ही है। हर चर्चा नियमों से बंधी हुई होती है, संविधान से बंधी हुई होती है, परंतु एक मायनों में ये सदन जन चेतना का, जनता की आकांक्षाओं का और जनता की इच्छाओं की प्रवक्ता बनने का भी सदन का दायित्व है, और आज ये हो रहा है। 140 करोड़ के देश में और दुनिया भर में बैठे हुए राम भक्त जो 22 जनवरी के बाद एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना का अनुभव कर रहे हैं, इसको वाचा देने के लिए आपने समय दिया, इसलिए देश आपका हमेशा के लिए आभारी रहेगा। मान्यवर, मैंने आज किसी का जवाब नहीं देना है। आज मैं मेरे मन की बात
और देश की जनता की आवाज को इस सदन के सामने रखना चाहता हूं, जो सालों से कोर्ट के कागजों में दबी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको आवाज भी मिली, अभिव्यक्ति भी मिली। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन, भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। ये सबको समझकर चलना चाहिए। मान्यवर, जो इतिहास को पहचानते नहीं, ऐतिहासिक पलों को पहचानते नहीं, वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। मैं आज फिर से एक बार कहने वाला हूं मान्यवर कि 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र से भी अधिक सालों तक इस देश का ऐतिहासिक दिन है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुई एक संघर्ष और अन्याय के सामने लड़ाई का एक आंदोलन के अंत का दिन है। 1528 से चली हुई ये न्याय की लड़ाई यहां पर समाप्त। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन करोड़ों भक्तों के आशा, आकांक्षा और सिद्धि का दिन है। उनकी आज आशा आकांक्षाएं सिद्ध हुई है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन भारत की, समग्र भारत की, मैं चाहूंगा कि समग्र भारत पर पूरा सदन गौर करे। 22 जनवरी का दिन समग्र भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनः जागरण का दिन आज इतिहास में बन चुका है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। 22 आदिवासी जीवन भी एक प्रकार से अलग संस्कृति से, अलग परंपराओं से रचा बचा। उरांव में, बोडो में, संकाल में, बिरहोर में और छोटा नागपुर में सभी जगह स्थानीय भाषाओं में रामायण का अनुवाद भी हुआ और रामायण के आधार पर अपने जीवन को, आदर्श को बनाने का काम भी हुआ। इसको परवान चढ़ना था, इस स्वप्न को सिद्ध होना था और आज देश स्वप्न सिद्ध होता हुआ दिखा है। मान्यवर, राम जन्मभूमि का जो इतिहास है ये बहुत लंबा है। अनेक राजाओं, संतों, निहंगों, अलग अलग संगठनों और कानून विशेषज्ञों ने ये लड़ाई में योगदान दिया है। मैं आज ये 1528 से 22 जनवरी 2024 तक की संपूर्ण कानूनी और युद्धों की और आंदोलनों की लड़ाई को, इस सभी योद्धाओं को बहुत विनम्रता से स्मरण करना चाहता हूं। और उनकी लड़ाई जब आज समाप्त हुई है, तब मुझे विश्वास है मान्यवर, वो जहां भी होंगे बड़ी आनंद की अनुभूति करते होंगे, अपनी श्रद्धा को चरितार्थ करने की अनुभूति करते होंगे। गिलहरी के समान कई लोगों ने अपना योगदान दिया और मान्यवर, ये राम सेतु जो बनना था 1528 से 22 जनवरी 2024 तक का, ये सेतु का भूमि पूजन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया और प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी के। मान्यवर, 1990 में जब ये आंदोलन ने गति पकड़ी, उसके पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का ये देश की जनता को वादा था। हमने पालमपुर कार्यकारिणी के अंदर हमने एक प्रस्ताव पारित कर कहा था कि राम मंदिर का निर्माण, इसको कोई एक धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये देश की चाहता हूं कि मान्यवर, क्या सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ के जजमेंट से आप वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? भारत के संविधान से वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? किसी ने अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर वहां पर मंदिर बनाया होता तो आप कुछ भी कह सकते थे, मगर जब देश की सर्वोच्च अदालत के 5 जजों की खंडपीठ ने, और जिसकी अध्यक्षता स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आने वाले 4 चीफ जस्टिस कर रहे थे, ऐसी महत्वपूर्ण बेंच ने जब ये निर्णय लिया, तब आप कैसे कन्नी काट सकते हो? मान्यवर, 14 से 19 तक राम जन्मभूमि मंदिर की लड़ाई चली, उसका ट्रांसलेशन हुआ, सालों लगे,
लाखों पेज का अनुवाद हुआ, अनुवाद होकर कोर्ट तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या पहुंचाई और सुप्रीम कोर्ट ने जब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब और जब जजमेंट आया तब कई लोग आगाज लगा रहे थे, कई लोग अनुमान कर रहे थे इस देश में रक्तपात हो जाएगा। इसको नेतृत्व करने का जनता का प्रतिनिधि के नाते जब मौका दिया शिलान्यास करने का, तब मोदी जी के जो पूरा आचरण है इसको ध्यान से देखना चाहिए मान्यवर। वो आचरण आने वाले अनेक सैकड़ों सालों तक दुनिया के सामने रहेगा और दुनिया के सामने इससे कई लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। मान्यवर, हम सब ने आचार्य गोविंद देव गिरि जी ने जो वक्तव्य, नारियल पानी के साथ उपवास करना, 11 दिन तक पूरा समय राममय राम भक्ति में रचे बसे रहना और जीवन की उस वक्त की हर सांस को राम के साथ जोड़कर राममय बनकर प्राण प्रतिष्ठा करना। मान्यवर, ये 11 दिन में मां सबरी, गिलेरी, वानर, भालू, जटायु, ये सब के साथ जुड़े हुए देश भर में जो राम के स्थान थे वहां जाकर राम के काज के लिए गिलेरी जैसा भी योगदान देने वालों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने का काम प्रधानमंत्री। राम मंदिर का जब भूमि पूजन का समय आया, कोई पॉलिटिकल नारे नहीं लगाए, ना मोदी जी ने इसका नेतृत्व पॉलिटिकली किया, ना हमारी पार्टी ने किया। हर रोज एक राम का भजन अलग अलग भाषा में ट्वीट कर एक भक्ति का आंदोलन शुरू किया। मान्यवर, इस देश में कई सारे भक्ति के आंदोलन खड़े हुए हैं, ढेर सारे आंदोलन खड़े हुए। मान्यवर, इस देश में भक्ति का आंदोलन कोई नया नहीं है। मान्यवर, मीरा ने चलाया, गुजरात में नरसिंह मेहता ने चलाया, रामानंद ने चलाया, एकनाथ और ज्ञानेश्वर ने चलाया, शंकरदेव और माधवदेव ने असम में चलाया, चैतन्य महाप्रभु ने चलाया, समर्थ रामदास ने चलाया। ये सब भक्ति आंदोलन ने समय समय पर देश को मजबूत करने का काम किया है, सनातन धर्म को टिकाने का काम किया है और सनातन धर्म के प्रति सबकी आस्था को बंधाने का। घनघोर अंधेरी रात में एक ध्रुव तारे की तरह ये भक्ति आंदोलन ने देश के जनमानस का नेतृत्व किया। भारत के ही छोर में 10 सिख गुरुओं ने अनेक प्रकार के बलिदान, एक दशम पिता ने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया। इस प्रकार के त्याग की भी इस देश की परंपरा रही, परंतु ये समग्र भारत के हजारों साल लंबे सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में एक शासक ने, एक जनता के व्यक्ति ने, एक जनता के प्रतिनिधि ने अपने यम, नियम, तप और उपासना से भक्ति चेतना की जागृति की, तो इसका एकमात्र घटना नरेंद्र मोदी जी ने की। और मैं तो स्वयं अनुभव कर रहा हूं। मैं उस दिन बैठा था लक्ष्मी नारायण मंदिर में, दिल्ली में बिरला मंदिर में, जो जनता थी, जो लोग थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पूरा देश राममय हो गया था और जय श्री राम के नारे लगा रहा। मान्यवर, मोदी जी ने बड़ी शालीनता के साथ विजय के, पराजय के कोई भाव के बगैर जय श्री राम के युद्ध के नारों से पूरी दुनिया जानती है। जय श्री राम की वानर सेना। दोस्तों, बाकी जो भाषण है आप लोग संसद टीवी में जाके देख सकते हैं। मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। अब मैं तीसरे भाषण पे आता हूं और तीसरा भाषण है सुधांशु त्रिवेदी का। भयंकर भाषण था वो भी, थोड़ा सुनिए वो सुधांशु त्रिवेदी साहब क्या बोल रहे हैं। मैं उसको इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सुनाऊंगा। पूरा भाषण आप संसद टीवी में जाकर के सुन सकते हैं। Short duration discussion. Notices have been received from the following members to raise a discussion. सुधांशु त्रिवेदी जी आप साहब
बीजेपी की तरफ से पहले वक्ता थे राज्यसभा में। नहीं जो हुआ है तो टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग से हुआ है। किसी ने चरण सिंह को क्यों दिया, किसी ने चैलेंज नहीं किया। ऑन द अदर धन्यवाद। हैंड, अब इस विषय में बहस नहीं, इसको माननीय सर भाई Please, भाई no. अपॉलॉजी कर, भाई अपॉलॉजी माननीय चेयरमैन ने अपनी वेदना प्रकट की है, पूरा सदन उनके साथ है, हमें इस पर बात करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर पुनः वही आचरण। नो, नाउ ऑनरेबल चेयरमैन हैज कॉल्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, मिस्टर केशव, डॉक्टर केशव। Notices have been received from the following members to raise a discussion on श्री राम मंदिर की ऐतिहासिक निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा, हिस्टोरिक कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री राम टेम्पल एंड प्राण प्रतिष्ठा, श्री राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर के लक्ष्मण, श्री राकेश सिन्हा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। माननीय सभापति महोदय, आज जब हम लोग इस कालखंड में खड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि जब मैं किशोरावस्था में था और श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उस महान यज्ञ में जिसमें करोड़ों लोगों ने कई पीढ़ियों तक अपनी आहुति दी, उसकी पूर्णाहुति देखते हुए देखना अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव होता है। और यह काल इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है कि यह भारत के अमृत काल का ही कालखंड नहीं है, बल्कि श्री राम मंदिर के माध्यम से शताब्दियों से सोई हुई भारत की चेतना के पुनः उठकर अग्रसर होने और विश्व को नया संदेश देने का एक संधिकाल भी है। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मेरे मन में एक भाव आया कि ये ऐसा काल था जिसमें बहुत कुछ असंभव लगने वाली चीज भी साकार रूप धारण हुई है। तो मेरे मन में यह भाव आया कि मानो अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के, साकार हुआ स्वप्न हर बला को टाल के, नए क्षितिज उभर रहे हैं अमृत काल के और दिव्य दर्शन हो रहे हैं श्री राम लाल के। मान्यवर, भगवान राम उस भारत की स्व की अनुभूति है जो भारत के स्वतंत्रता के बाद निश्चित रूप से प्रकट होनी चाहिए थी, जो अनादिकाल से भारत में उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर में यदि गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुमुखी में रामावतार लिखा तो दक्षिण में तमिल में कंबन ऋषि ने वही रामावतारम नाम से ही लिखा, तो बंगला में कृतिवास ने यदि लिखा तो हिंदी में तुलसीदास ने लिखा, तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से सब तरफ भारत के प्राण को अनुप्राणित करने वाला यह तत्व था। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की तो अपना राजनीतिक दर्शन रखा था राम राज्य, और प्रतिदिन का भजन रखा था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द रखा था हे राम। परंतु हे राम, मैं ये कहना चाहूंगा उन राम को भी प्राण प्रतिष्ठित करने में इतना संघर्ष करना पड़ा जो भारत के समाज से लेके आध्यात्म और मन तक विद्यमान थे, जिसे हम लोग उस आंदोलन के समय कहते थे कि ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो प्रति क्षण बोलिए जय श्री राम की। मगर आगे समस्या ये थी, तो हम कहते थे शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। और आपदाओं विपदाओं को पार करते हुए वह सौगंध आज पूर्ण हुई। इसके लिए अनेकानेक लोगों ने बलिदान दिया, देवी दीन पांडे जी से लेके सरदार फकीर सिंह से लेके हजारों संतों से लेके कार सेवकों तक और कोठारी बंधुओं तक। परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं इस विषय पे कोट करना चाहता हूं। 2003 के नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल ने एक किताब लिखी थी भारत के बारे में, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा भारत एक विचित्र देश है जहां पर कि अपनी संस्कृति को आघात करने वाले विषय को पढ़ाया जाता है और आघात करने का प्रयास किया जाता है, इसीलिए उन्होंने वुंडेड सिविलाइजेशन वर्ड कहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इतिहास में प्रत्यक्ष प्रमाण थे उनको भी झुटलाने का प्रयास हुआ। श्री राम जन्मभूमि केस के सिर्फ 2 उदाहरण बताना चाहता हूं। जब मुकदमा चला तो ये पूछा गया कि भाई पिछले उदाहरण दीजिए कोई शताब्दियों के, तो विपरीत पक्ष के पास कोई उदाहरण नहीं थे। हमने फॉरेन ट्रेवलर्स के उदाहरण कोट किए। विलियम फिंच नाम का ब्रिटिश ट्रेवलर आया 1610-20 के आसपास, उसने कहीं पर मस्जिद का उल्लेख नहीं किया, सिर्फ मंदिर का उल्लेख किया। फ्रेंच ट्रेवलर आया जोसेफ टिफेंथलर 1720 के आसपास, तो वो कहता वहां पर चबूतरा है जिसमें कि और एक पक्ष में वो मस्जिद की बात करता है और बताता है कि रामनवमी पे लाखों की भीड़ लगती है। परंतु उसके बावजूद एक मजेदार बात बताना चाहता हूं, जब से ब्रिटिश डॉक्यूमेंट आया तो जो पहली एफआईआर ऑफिशियली दर्ज हुई है नवंबर 1858 में, फैजाबाद के थानेदार को रिपोर्ट दी गई है
कि 25 निहंग सिखों ने आकर कब्जा कर लिया है, यज्ञ हवन किया है और मस्जिद जन्म स्थान के सब तरफ राम राम लिख दिया। और जानते हो उस पे सभापति महोदय सिग्नेचर क्या है? मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। अब बताइए, जन्म स्थान पहली एफआईआर में खुद मुतव्वली लिख रहा है और उसके बाद इस विषय को इतना बढ़ाया गया। और स्वतंत्रता के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए, उसके बाद ये ध्यान देने योग्य बात है, ये समुदायों के बीच के संघर्ष का विषय नहीं था, ये भारत के स्वाभिमान का विषय था। 12 साल टाइटल सूट की मियाद होती है, 12 साल तक मुस्लिम पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उसमें पैरोकार ही नहीं था। 1961 में, दिसंबर 1961 में जब 12 साल पूरे होने में 4 दिन रह गए थे, तब सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड उसमें पैरोकार बना। क्यों? कुछ सेकुलरिस्टों ने समझाया, कुछ लेफ्टिस्टों ने समझाया। और इसका उल्लेख के मोहम्मद साहब ने अपनी किताब में किया है कि मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा तबका ये मानता था कि हमें इस विषय में पढ़ने की जरूरत नहीं है, परंतु राजनीति के चलते हुए भारत के स्वाभिमान का विषय ये इसका प्रतीक बना। परंतु उसके बाद कोर्ट का निर्णय आया, संपूर्ण मर्यादाओं को पूर्ण करते हुए आज ये दिन आया। तो मैं कई बार हम लोग से कहा जाता है कोर्ट का निर्णय आया तो इसमें आपने क्या किया? तो मैं बताना चाहता हूं, हम जब जब सत्ता में आए 1991 में कल्याण सिंह जी की सरकार ने आकर 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। उसके बाद याद करिए, खुदाई पर रोक लगा दी गई थी। तो अटल जी की सरकार आई तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार। तो रेडार मैपिंग की गई और वो कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई। मतलब ऑपरेशन पे रोक थी, अल्ट्रासाउंड पे तो नहीं थी ना। तो अल्ट्रासाउंड करके दिखाया गया, देखो भाई अंदर क्या है। फिर कोर्ट ने परमिशन दी और उसी खुदाई की हुई 2003 में, और उसके अंदर जो साक्ष्य निकले उसी से 30 सितंबर 2010 का लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, जिसने गर्भगृह श्री रामलला विराजमान को दिया। अब जब मोदी जी की सरकार आई तो क्या अंतर था? विषय सुप्रीम कोर्ट में आ चुका था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में सारी की सारी प्रोसीडिंग सिर्फ इंग्लिश में होती है, और वहां सारे डॉक्यूमेंट्स जो हजारों हजार पेज के थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था विद ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, जिसमें अरबी फारसी के भी थे, संस्कृत के भी थे, सबके थे। तो हमारी सरकार में आने के बाद अगर 60 साल उसमें लगे थे, हो सकता 50 साल इसमें भी लग जाते, क्योंकि बहुत से लोग वकील का चोला ओढ़कर खड़े होकर ये भी कहते थे फलां साल के पीछे ले जाइए इस जजमेंट को। मगर मोदी जी की सरकार ने आने के बाद 24/7 लगाकर सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका केवल 2-3 वर्षों में ट्रांसलेशन किया, और उसके बाद जाके कोर्ट में अर्जी लगाई कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार तो उसमें विचार करती थी कि हनुमान तेहि परसा करि पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। और फिर आपने देखा कि वो जब जजमेंट आया, और ये भी एक सुखद संयोग देखिए कि मान्यवर, हमसे टीवी डिबेट में अक्सर बहुत पूछा जाता था कि आ गए भाजपा वाले, कहते हैं रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। महोदय, राम का मंदिर कोई इमारत नहीं थी, ये भारत की भव्यता का आगाज था, और वो तारीख कोई तारीख नहीं थी, वो काल की गति थी। और वो तारीख क्या थी मैं बताना चाहता हूं। जब रामलला इस मंदिर में आए हैं तो वो तारीख आई है, 4 करोड़ गरीबों को घर लेकर आई है, 11 करोड़ लोगों के लिए शौचालय लेके आई है, 54 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट लेके आई है, हर गांव में बिजली, हर गांव में सड़क लेकर आई है, और इतना ही नहीं, हर शहर में हर राज्य में एयरपोर्ट लेकर आई है, समुद्र पे सबसे बड़ा सेतु अटल सेतु लेकर आई है, और चिनाब नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब का पुल लेकर आई है, हाईएस्ट एफडीआई लेके आई है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेके आई है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी लेके आई है। और जनाब, वो फिल्म का डायलॉग होता था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला, इंडियन पैनल कोड को तारीख का हिस्सा बनाकर भारतीय न्याय संहिता लेके आई है, जो 3 साल के अंदर सारी तारीखों को खत्म कर देगा। मगर महोदय, ये तारीख का राज थोड़ा और गहरा है, क्योंकि जब राम मंदिर तो ये 3 भाषण थे देवगौड़ा साहब के, अमित शाह साहब के और सुधांशु त्रिवेदी के। बाकी सुधांशु त्रिवेदी का जो भाषण है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल है, मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट आंसर उसके दिखा दिए हैं। आपको अगर देखना है पूरा भाषण इसका, तो आप संसद टीवी में जाके देखिए। लेकिन मुझे ये 3 भाषण बहुत अच्छे लगे, और इसीलिए, और ये ऐतिहासिक भाषण, पूर्ण भाषण है, जिनको आप लोगों को देखना चाहिए और अपने बच्चों को दिखाना चाहिए, जिससे हमारे को अपनी संस्कृति के बारे में पूरा मालूम पड़ेगा। तो आशा है 34-35 मिनट का वीडियो हो गया है, अब मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मुझे दिए हुए
यूपीआई पे या जीपे पे सपोर्ट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।